and NSS2 for BTech, Dairy and Bachelor of Fishery Science. This initiative marks a meaningful step towards integrating holistic well-being, emotional balance, and inner peace into the academic journey of our students. I welcome Chairman of today's launching ceremony of Sahaj Yoga Meditation, Dr. Nitin V. Patil, sir, Honorable Vice Chancellor, Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur. I again welcome Advocate Mahesh Tandekar, sir, Co-Coordinator, Sahaj Yoga, Maharashtra State. Director of Research, Dr. Nitin Kokure, sir. Director of Extension Education, Dr. H.W. Bulle, sir. Registrar, Srimati Mona Thakur, Madam. Comptroller, Srimati Manisha Shende, Madam. Associate Dean of Nagpur Veterinary College, Nagpur, Dr. Jayant Khurde, sir. All the associate deans and faculty members of constituent colleges of MAPSU, all the principals of diploma school joined online, and all academic staff and non-teaching staff of the university, and all dear students present here and joined online. It is our great honor to welcome the esteemed dignitaries who have graced this occasion. Now I request Dr. Nitin Patil, sir, Honorable Vice Chancellor MAPSU, to welcome Advocate Mahesh Tandekar, sir, with solemnity. It is grateful and Thank you, sir. Now I request Dr. Nitin Kokure, sir, to welcome Dr. Nitin Patil, sir, Honorable Vice Chancellor, MAPSU. Thank you, sir. Now I request Dr. Jayant Khurde, sir, of the CIT, Nagpur Veterinary College, Nagpur, for his introductory speech about the. Namaskar. Chairman of today's inaugural launching ceremony of two new courses, Honorable Vice Chancellor Dr. Nitin Patil, sir. Sahaj Yogi, Shri Mahesh Tandekar, State Level Coordinator for Sahaj Yoga. Respected Director of Research, Dr. Nitin Kokure, Director Extension Education and Dean Fisheries, Dr. Sachin Bonde, Dean Dairy Technology, Dr. Prashant Wasnik, Dean Lower Education, Dr. Ram Teke, Registrar, Ms. Mona Thakur, Comptroller, Ms. Manisha Shende, Comptroller of Examination, Dr. Nandeshwar, all associate deans of the constituent colleges of MAPSU, principals of lower education schools across Maharashtra, distinguished faculty members, and dear students from various faculties. Good morning, one and all. It's my privilege to welcome you all to the launching program of Sahaj Yoga Meditation course, recently approved by Honorable Executive Council of MAPSU. This non-credit course, CNN 111, CNC 111, designed for students of the first professional year of UAC and AH degree course, with a syllabus comprising of fundamental practices of Sahaj Yoga meditation. The Honorable Executive Council has also resolved to incorporate this same syllabus into the existing yoga curriculum under the National Service Scheme 2 course of BTech Dairy Technology and Bachelor of Fishery Sciences.
This is in alignment with the 6th Dean Committee. By integrating this Sahajyog course, meditation course into the academic framework of veterinary, dairy, and milk sciences, MAPSU is taking a progressive and thoughtful step towards promoting holistic well-being among the students. This initiative will help students to develop inner balance, emotional resilience, and mental clarity qualities essential for professional in every scientific and service-oriented field. This effort of MAPSU also resonates strongly with vision of national education policy, which emphasizes nurturing students to be physically, mentally, and emotionally healthy. At a time when academic pressure and personal space are increasing, the inclusion of structured meditation training is not only relevant but greatly necessary for particularly the students. We are honored to have us today Advocate Mahesh Dandekar, a renowned Sahaj Yogi and the Maharashtra State Level Coordinator for Sahaj Yoga. His extensive experience in teaching meditation and his long-standing association with Sahaj Yoga make him an invaluable resource person in this field. We look forward to his guidance during today's Sahaj Yoga session. This program is being conducted in hybrid mode, enabling a wide participation from all degree colleges and diploma schools of MAPSU. This Sahaj Yoga meditation training will also continue today, tomorrow, and day after tomorrow also. This will be conducted by Advocate Mahesh Dandekar itself. Well, before concluding, I place on record my heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Sir Dr. Nitin Patil, for his vision and encouragement in integrating wellness-oriented courses in the veterinary, dairy, and fishery curriculum. With these words, I once again extend my warm welcome to everyone present offline, here, and online. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor, sir, to for his address. First of all, I welcome you to this very important historic event, what I should say, that Sahaj Yoga meditation has been included for the first time probably in the universities as a course. Though it is a non-credit course, but the compulsion as regards the conduct of the sessions, then regular practice of it, then some evaluation process that are to continue for all those admitted students of first year of veterinary sciences, then dairy sciences, and also fishery science students. And also there are so many people who have joined online, and the link has been shared to so many people all over India. And there are 4 other universities also are part of this. Besides this, there are so many other people who probably do not understand English very much. So those are also online. So I will have my address in Hindi. सभी को सादर नमस्कार। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आज ये ऐसा ऐतिहासिक शुभ क्षण है कि जहां पे हम सहज योगा ध्यान एक कोर्स के तहत इसको इस यूनिवर्सिटी में शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये इस तरह से इस कार्यक्रम को एक
एकेडमिक प्रोग्राम के रूप में लेना, ये मुझे लगता पहली बार कोई यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और इसको देखा देखी ऐसे बहुत से बाकी के यूनिवर्सिटीज भी वेटिंग में हैं कि जो इसको अपने करिकुलम में ढालना चाहते हैं। ये एक नॉन क्रेडिट कोर्स जरूर है, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन बोर्ड्स अपने करिकुलम में इसको डाल चुके हैं, और इसका एक एडवांस वर्जन कहिए या एक व्यावहारिक रूप को हमने कोर्स का स्वरूप देना यहाँ पसंद किया है। और इसी के तहत ये कोर्स को हमने मंजूरी भी दे दी है हमारे एकेडमिक काउंसिल से और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इसका महत्व समझते हुए, और खास करके उन विद्यार्थियों को कि जो अब प्रोफेशनल लाइफ में अपनी एंट्री ले रहे हैं, और उनके पूरे अगर जीवन की बात करें तो प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल नॉलेज एक्वायर करना एक बहुत अलग बात है। पर वो करते करते ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उस अपने ध्येय के लिए प्रेरित होना तो बड़ी बात है, लेकिन कहीं भटक भी जाना संभव है। और जब आप भटक जाते हो तो हम आजकल देख रहे हैं कि भारत ऐसा देश है कि जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे पास है। अब उन युवाओं को एक सच्चे मार्ग पर लाना, एक एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय में जो एनईपी 2020 जो कि हमने अडॉप्ट किया है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उसका भी एक ध्येय रहा है कि भारतीय जीवन पद्धति का विकास हमारे लोगों में होना, और उसकी तरह से आप में और हम में ऐसे गुण, वर्च्यूज इनकलकेट होना जिसकी तरह से भारतीय सभ्यता का पूरा ज्ञान हम में हो, और हमारे बर्ताव में जब भी हम लोगों से मिले, क्योंकि हम अपने स्टेक होल्डर्स वैसे लोग होंगे, समाज के ऐसे अन्य लोग जिनके साथ भी हमारा उठना बैठना होगा, तो उनको अनुभव हो कि ये जो विद्यार्थी या ये जो प्रोफेशनल हमारे के साथ जो भी वार्ता कर रहा है वो पूर्ण तरह से एक संस्कृति के अधीन सब कुछ कर रहा है। तो एनईपी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि व्यक्तित्व विकास किस तरह से होना चाहिए, और वो उस व्यक्तित्व विकास के लिए जो भी कुछ ऐसे कोर्सेस आवश्यक है तो उसको भी अपने करिकुलम में आप जोड़ लेना आवश्यक था। तो आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित सभी हमारे वेटरनरी, जो 6 वेटरनरी कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में हैं, 2 डेयरी साइंस कॉलेजेस है, और साथ ही हमारे फिशरी साइंस 3 जो कॉलेजेस है उनके प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी है। इनके जैसे ही डॉक्टर कोरडे साहब ने बताया कि सभी एसोसिएट डीन्स इस कॉलेज के, सभी कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य स्टाफ मेंबर्स, और साथ ही साथ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो विद्यार्थी जो नागपुर वेटरनरी कॉलेज और नागपुर के फिशरी साइंस कॉलेज के सभी विद्यार्थी यहाँ पे है। हमारे यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर के मुख्यालय के जैसे डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे, डायरेक्टर रिसर्च है, डायरेक्टर एक्सटेंशन है, डायरेक्टर लोअर एजुकेशन है। और मैं खास करके बात और करना चाहता हूँ कि 2-4 दिन पहले ही मैंने बात की थी कि लोअर एजुकेशन में हमारे पास करीब 100 के ऊपर ऐसे डिप्लोमा कॉलेजेस है कि जिसमें कि हर वर्ष हम प्रथम वर्ष में 60 विद्यार्थियों को वहां पे एडमिशन देते हैं। उसके अलावा सेकंड ईयर के भी विद्यार्थी वहां होंगे, तो उसके भी बहुत सारे लोग इसमें इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए खास हमने जिनको आमंत्रित किया है वो महाराष्ट्र सहज योगा का स्प्रेड और पूरा जिम्मा जिनके पास है, महेश जी धांडेकर, इनको यहाँ पे खास बुलाया है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि भारतवर्ष में जहां जहां पर भी सहयोग की प्रैक्टिस होती है उन लोगों के पास भी इस लिंक को हमने शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सहयोग एक ऐसा साधन करके आगे आया है
और विश्व में 140 के देशों से ज्यादा और डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे महेश दांडेकर जी ये लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, और सभी वॉक ऑफ लाइफ में। और मेरा जहां तक खुद का अनुभव है कि इन सब लोगों से थोड़े थोड़े स्वरूप में मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है, एंड इन सब लोगों में सहयोग की प्रैक्टिस करते करते वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि जो कि एक अच्छा मनुष्य होने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए आवश्यक है। तब तो मेरा ये निजी स्वार्थ भी था कि ऐसे पद्धति का अगर एक कोर्स के रूप में हमारे यहाँ अवलंब हो, हम उसको अडॉप्ट करें, तो हो सकता है कि हमारी जो नई पीढ़ी उसके फ्रूट्स ले ही ले। और साथ ही साथ इस 3 दिन का आयोजन हमने इसलिए किया है कि ये सिर्फ एक दिन का सिर्फ कोई लेक्चर या सिर्फ समझ लेना वैसी बात नहीं है। इस पद्धति का अवलंब करते हुए आप वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे अपने अंदर जो भी चीज घटित हो रही है उस नैसर्गिक घटना का आज हमारा वो ऐतिहासिक क्षण होगा। ये यही बात नहीं है कि कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स आप सुन के और फिर बाद में 2-4 दिन या 10 दिन आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर जो भी करोगे उस तरह से बात नहीं होगी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आप अपनी मेंटल स्टेटस, आपका हेल्थ स्टेटस, आपका इमोशनल स्टेटस किस तरह से ड्रिफ्ट हो रहा है उसके बारे में जानना और उसका अनुभव करना, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी हमने आज हमारे जो मेहमान हैं महेश दांडेकर जी को इनको दी गई। इस पूरे कोर्स के दरमियान मुझे लगता है कि जो साल भर कोर्स ये चलेगा तो आप स्टाफ मेंबर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, अदर स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर और अप टू फाइनल ईयर जो भी होंगे, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट दे कैन फाइंड टाइम। और मैं जो कार्यक्रम के समन्वयक है मैडम सोनाली बोरकर, इनको भी आग्रह ये करूंगा कि इस कोर्स के जो भी लेक्चर्स या जिस तरह से प्रैक्टिकल्स होंगे उसका आयोजन इस तरह से करें कि आपके शैक्षणिक कार्यक्रम में इसका कोई भी खलल न हो। तो मुझे लगता है कि सभी एसोसिएट डीन्स, सभी जो प्रिंसिपल्स है, तो उन्होंने थोड़ा सा इसका ध्यान रखे और इनसे कोऑर्डिनेट करते हुए इस कार्यक्रम को बड़े सुचारू ढंग से कैसे चल सकता है उसके बारे में चर्चा करें। बाकी सहयोग की जो भी बात होगी, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर कोरडे ने बताया था कि आपको मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बैलेंस आपको मिलना, ये एक बाय प्रोडक्ट की बात होगी। लेकिन जो क्षण जिस तरह की आज ये व्यवस्था की गई है वो इस तरह से कि एक नैसर्गिक घटना, एक नेचुरल हैपनिंग आज हम सब में जो होने वाली है उसके हम आज साक्षी होंगे। और उसके लिए इसका जिसने प्रचार प्रसार और इसका उद्गम जिन्होंने किया, श्री माता जी निर्मला देवी जी, तो ये किस तरह से करना है, कैसे कर होता है, इसका सब ज्ञान मुझे लगता है आपको दांडेकर जी और इनके और साथी जो भी आएंगे वो करेंगे। मैं आपसे फिर से आग्रह ये करना चाहूंगा कि आज ये 3 दिन का कार्यक्रम तो आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि कल और परसों जब छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसका अनुभव आता है, so you can join along with your families, your other friends who can be part of this particular experience, and that would be my request on my own behalf and also on behalf of all the सहयोगीs। और इस यात्रा के दरमियान जब भी कहीं भी ऐसे मौके आएंगे, मिस्टर दांडेकर जी एक ऐसे सहयोगी है, और हो सकता है कि जब हमारे पास बाकी के लोग भी ऑनलाइन जब उपलब्ध होंगे, मे बी फ्रॉम अदर कंट्रीज, मे बी फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन लोगों को भी हम आपके साथ जोड़ने की कोशिश में रहेंगे। और मुझे लगता है उसमें कोऑर्डिनेटर साहब हमें परमिशन देंगे। बहुत कुछ और न कहते हुए जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हम सब लोग तैयार है। एंड आई थिंक इट इज very good thing that in so many large numbers you are here in the early morning, and so many other people, they have traveled long distances to be part of this particular program. तो एकेडमिक काउंसिल के सभी मेंबर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स, उनकी मैं धन्यवाद देता हूं। और
रिक्वेस्ट करता हूँ धांडेकर साहब को कि दैट ही विल convince us in half an hour or 40 minutes. Yes. That what Sahaj Yoga is and what benefit it gives. Yes. Thank you. Thank you so much. We now proceed to the launch of Sahaj Yoga meditation course, KNC 111 and NSS 2. I request Honorable Vice Chancellor Sir and all the dignitaries present here to kindly unveil the course. Thank you so much, sir. I now request our esteemed guest and Sahajogi, Professor Mahesh Dandekar, sir, Coordinator Sahaj Yoga Maharashtra State, to initiate Sahaj Yoga meditation program. Sir, please. I can. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं सहयोग ध्यान केंद्र के पूरे भारतवर्ष के परिवार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। सम्माननीय आदरणीय कुलगुरु महोदय, महाराष्ट्र पशु तथा मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, यहाँ अन्य विभागों से उपस्थित सभी सम्माननीय अधिष्ठाता महोदय, सभी विभाग प्रमुख, एकेडमिक काउंसिल के सारे सम्माननीय सदस्य और आज इस पूरे कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम की सारी विचारधारा के केंद्र बिंदु है, माने सारे विद्यार्थी भाई बहन। चूंकि अभी सभी सम्माननीय महोदय यहाँ उपस्थित है और कार्यक्रम का इतना औपचारिक रूप से इतना सुंदर स्वरूप में उद्घाटन हुआ है, तो वातावरण बहुत गंभीर हो गया है। मैं आपको बड़ी प्रामाणिकता से बताऊं तो योग ये विषय गंभीरता का नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। बड़े खुले दिल से, खुले दिमाग से और बड़ी प्रसन्नता से इसको समझना, स्वीकार करना और उसका अनुभव करने का विषय है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि शुरुआत में ही आप बिल्कुल जो स्टूडेंट भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो सभी सम्माननीय शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं, आप सभी से विनती है कि एक साइंटिस्ट की तरह, आप ऑलरेडी यू ऑल आर अ साइंटिस्ट, तो आप सब विज्ञान के विषय के विद्यार्थी हैं, उसके प्रपाठक हैं, आप उसको पढ़ाने वाले हैं, तो इस विषय को आप बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले हृदय से इसको समझने का प्रयास करें। और जैसे कि बताया गया, सहज योग ये सहज चीज है, सरल चीज है। तो इस सरल चीज को अंत में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे 5-10 मिनट का। तो आप उस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में अभी हम बैठे हैं, या हमारी अटेंशन की जो अभी स्थिति है, हमारे विचार की, मन की जो अभी स्थिति है, वहां से लेकर के तो एक 5-7 मिनट के प्रैक्टिस में हम कहाँ पहुंचते हैं या हम किस स्थिति में पहुंचते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि जब हम लोगों ने जन्म लिया था तो साथ में कुछ भी नहीं लेकर आए थे, ना अपना नाम लेकर के आए थे, ना किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई स्टैंप अपने साथ में लेकर आए थे। तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हम लोग आए थे
वैसे ही ये सिस्टम या ये योग हमारे अंदर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, बियॉन्ड द स्टैम्प ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी रिलीजन, एनी थॉट प्रोसेस। माने जितनी नेचुरली सूरज उगता है, जितनी नेचुरली पुष्प खिलते हैं, जितने नेचुरली हम एज अ ह्यूमन बीइंग बढ़ते हैं, उतने ही नेचुरली ये योग का विषय हमारे अंदर होता है। आज हम इसको न कि जानेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है कि किस तरह से हम लोग मापसू तक पहुंचे हैं और किस तरीके से ये चीज को वर्कआउट करना आज के जमाने की बहुत बड़ी जरूरत है, इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताऊं। सन 2023 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के समक्ष हमने एक प्रस्ताव रखा था कि महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में जो यंग जनरेशन है, ऑल दोज हु आर यूथ, ये एक बहुत बड़ा फोर्स हमारे सामने है जिसको एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, बहुत एनर्जी होती है। ईच यंग स्टूडेंट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, दे कैन क्रिएट अ लॉट। और आप सब लोगों को मालूम है कि यूएस की आधी इकोनॉमी तो इंडियंस ही चला रहे हैं। द टैलेंट विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम हियर इज प्रोड्यूसिंग वंडर्स देयर। सो हमारे देश में इन सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में जितने भी युवा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जो नित्य स्तर पे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इंस्टीट्यूशंस का कोई शेड्यूल डिस्टर्ब करने वाला ना हो, पर जिसका अनुभव वो अपने रेगुलर लाइफ में कर पाए। सो दिस प्रपोजल वाज पुट फॉरवर्ड बिफोर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र, और सहयोग ध्यान केंद्र का पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ नेटवर्क देखकर उन्होंने जब ये जाना कि दिस कैन बी डन, तो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन इन्होंने एक सर्कुलर निकाला इन द नेम ऑफ ऑल डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन कि महाराष्ट्र में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहां पर सहयोग ध्यान का एक अभ्यासक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर चलाया जाए, जिसमें सारे शिक्षाविद और विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। इसकी देखा देखी केंद्रीय विद्यालय संगठन, देन जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय और महाराष्ट्र के अन्य अन्य शिक्षा संस्थानों में भी ये प्रपोजल कार्यान्वित हो उठा। फिर हमने आदरणीय कुलगुरु महोदय के समक्ष यही प्रस्ताव रखा और एक अभ्यासक्रम रखा गया जिसको मान्यता दी गई आदरणीय एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से। तो आज हम इस चीज को नबकी जानेंगे बहुत संक्षेप में, और उसके बाद में उसका एक छोटा सा अनुभव लेंगे कि कैसे हमारे देश में ध्यान नाम की जो एक छोटी सी विधि है, जो किसी जाति पंथ धर्म को बिलोंग नहीं करती, पर जिसका अनुभव लेने के बाद में हमारे अंदर जरूर एक बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल बदलाव होता है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में अपने लिए संजो सकते हैं, अपने लिए उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसका बहुत सारा उपयोग हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे करिकुलम के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम में आ सकता है। दूसरी एक बात और आपको बता दूं कि भारतवर्ष में आज पहले तो महाराष्ट्र से बता दूं कि तकरीबन 2000 से ज्यादा ध्यान केंद्र महाराष्ट्र में है, करीबन 1.5-2 लाख आसपास सहयोगी साधक महाराष्ट्र में है जो अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स को बिलोंग करते हैं। मेरे साथ आप देख रहे होंगे सारी युवा मंडली खड़ी है जो इस सारे प्रसारण को पूरे भारतवर्ष में संभाल रही है, और 150 से ज्यादा देशों में लोग इस कॉग्निटिव साइंस को अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए तो अपनी विजन को और फोकस बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को और ग्रूम करने के लिए, और जो लास्ट गोल हमारे लाइफ का है, एक समाधानी, संतुष्ट, आनंदमय और चीयरफुल लाइफ जीने के लिए, जो हम खुद अपने लिए भी जीना चाहेंगे और विरासत में अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे, अपनी अगली पीढ़ी को भी देना चाहेंगे। भारत में मुंबई और दिल्ली में 2 रिसर्च सेंटर्स हैं सहयोगा के, जहां निरंतर मेडिकल साइंस के आधार पर इस पर रिसर्च होता है, और इसीलिए कॉग्निटिव साइंस करके सहयोग आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सहयोग के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो युवाओं को लेकर के है। तो सारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा वो उनकी लाइफस्टाइल से संबंधित, उनके जीवन में जो चीजें चलती रहती हैं उनसे संबंधित है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखें और कनेक्ट करें कि कहीं ना कहीं यही हमारे जीवन में चलते रहता है। और जब हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक फोकस्ड अटेंशन हो, हमारी विजन
बहुत क्लियर हो, हमारा जो आगे का रास्ता है उसको तय करने में हम हमेशा एक राइट डायरेक्शन में चलते रहें। तो किस तरह से मेडिटेशन इन सब में हमें हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो सभी अपने जीवन में गहरा अनुभव रखते हैं, ऐसे जितने भी वरिष्ठ मंडली यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आपके लाइफ के चैलेंजेस थोड़े अलग हैं, आपके लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा अलग होता है, चैलेंजेस थोड़े अलग होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े अलग होते हैं। आप उस कंटेक्स्ट में इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखें ताकि आप समझ जाएं कि किस तरीके से मेडिटेशन कैन हेल्प अस टू प्रोवाइड अ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन टू ऑल अवर चैलेंजेस। आइए शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम को हमने टाइटल दिया है वेलनेस थ्रू सहयोगा मेडिटेशन। तो अपने लाइफ में वेलनेस कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्ट्रेस फ्री रहना, हर समय चेयरफुल रहना, फुल ऑफ एनर्जी रहना, ये हम सबकी जरूरत है। पर कुछ चैलेंजेस जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट लाइफ में, जिसके कारण हम अपने लाइफ में फोकस्ड होने से, हर समय पावर ऑफ एनर्जी से भरे होने से या एक राइट डायरेक्शन में चलने से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए पहला ये जो स्लाइड है जिसमें पंखा चल रहा है और वो जो बच्चा बैठा है एनिमेशन में, दिस शोज आवर मल्टीटास्किंग। वो एक व्यक्ति कितनी चीजें करना चाह रहा है। He wants to complete his assignment, he wants that all time he should be focused and he doesn't want to stop. So multitasking ये एक हमारा रोजमर्रा का एक ऐसा शब्द हो गया है जो हमारी हम सबकी डिक्शनरी में रहना चाहता है। लेकिन उसके बाद में आप देख रहे हैं कि कभी कभी इस मल्टीटास्किंग के एंड में कभी कभी ऐसा कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे ऊपर छा जाता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ करके थक गए, अब कुछ नहीं करना। वो आप देख सकते हैं कि दूसरे स्लाइड में किस तरीके से वो बच्चा उल्टा झूलकर अपने दिमाग को ठंडा कर रहा है। वो चाह रहा है कि इतना सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर है, कभी तो मुझे शांति मिले। एक और चीज उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, एक बच्चा नीचे में माइक पकड़े खड़ा है कि प्रेजेंटेशन तैयार है, स्लाइड्स रेडी है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन क्राउड के सामने जब खड़ा होता हूं तब पांव लपलप करने लगते हैं, डर लगने लगता है कि आधे का पहला आएगा या बाद का पहला आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आप हल्क को देख रहे हैं, बहुत सारा गुस्सा हमारे अंदर कभी कभी भरा होता है। गुस्सा खुद के प्रति भी हो सकता है, परिवार के प्रति हो सकता है, व्यवस्था के प्रति हो सकता है, शिक्षा के प्रति हो सकता है, शिक्षा पूरी करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिल पाता उसके प्रति हो सकता है, सिस्टम के प्रति हो सकता है। तो ये गुस्सा या अपने आप से असंतोष या चिढ़, ये सब भी हमें अपनी राइट डायरेक्शन से फोकस करने में कभी कभी दूर रखते हैं। और लास्टली आप देख सकते हैं कि हमेशा टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज हमारे सामने होता है। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो 2 बॉल 3 रन की सिचुएशन हमेशा हमारी लाइफ में बनी रहती है। ये सारी चीजें हमें हमारे फोकस्ड अटेंशन से, हमारे एनर्जी को कंसंट्रेट करने से हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, हमारी एनर्जी को खींचते रहती हैं। कुछ और चैलेंजेस हमारी युवा पीढ़ी के लाइफस्टाइल में होते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मुझे इस स्लाइड को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक स्लाइड देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब हम पीयर ग्रुप में होते हैं, हमारे ही एज के बहुत सारे बच्चे, हमारी एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हमारे साथ में होते हैं, तो कुछ बताना नहीं पड़ता कि कहाँ से मस्ती शुरू करनी है। मस्ती का ख्याल आने के पहले ही मस्ती शुरू हो जाती है। जब फैकल्टीज क्लासरूम में नहीं होते तो हमारा खुद का एक माहौल होता है और उसी माहौल में हम बंधे रहते हैं। दूसरा एक स्लाइड आप देख रहे हैं कि जिसमें अब OTT ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रात भर जब आप चाहे, जब जो चाहे आप देख सकते हैं। तो हम इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं इन एंटरटेनमेंट्स में कि पूछिए मत। द नेक्स्ट वन इज डे ड्रीमिंग। क्लासरूम में कुछ चल रहा है, स्क्रीन में कुछ चल रहा है, बुक्स में कुछ चल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो सब लोगों की चेहरे पर जो मुस्कान है उसमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग इनमें से जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइटैनिक। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देखकर समझ गए। लोगों को लगता है कि जो इंटीमेसी है या इंटरेक्शन है दैट्स राइट। कुछ लोगों को लगता है भाई जब हम दो एक दूसरे को समझ रहे हैं तो तीसरे को इससे क्या तकलीफ है। पर आप सब लोग रियलिटी उसकी जानते हैं कि कितना हम हमारी स्टूडेंट लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से इन चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन ये 6x2 का छोटा सा डिवाइस जो एक बार हाथ में आए तो अंगूठे का इतना सारा व्यायाम हमसे करवा लेता है कि जितना शायद हम हमारा थंब कभी घुमाए नहीं।
तो रील्स का जो एआई है वो इतना स्ट्रांग है, ही नोज आपको दिन के किस समय कौन सी चीज देखनी है, जो नहीं देखनी होती है वो सबसे ज्यादा परोस देता है। तो मोबाइल हमें कभी हमारे रियल फोकस पर रखता नहीं, उससे दूर हमें ये चलता है। देन आप देख रहे हैं लास्ट स्लाइड में, जब हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं या वेट कॉन्शियस हो जाते हैं या जिम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हर दिन हम हमारा देखते हैं कि कितना वजन बढ़ गया, कम हो गया, डाइट में क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं हेल्थ के बारे में। बट रियल हेल्थ, दैट इज द हेल्थ विद इन, उसके प्रति हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाई, ये सारी इसी चीज को बयां करती हैं कि ऑलवेज देयर इज अ टग ऑफ वार बिटवीन द इमोशंस एंड द एक्शंस, इमोशंस एंड द लॉजिक, इमोशंस एंड द ब्रेन, इनके बीच में हमेशा खींचातानी चलते रहती है। इमोशंस में हम कभी इनसिक्योरिटी, कभी डिप्रेशन, कभी फियर ऑफ फेल्यूर फील करते हैं, और कभी एक्शंस में हम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बहुत सारे एग्रेशन हमारे अंदर और होता है। तो इन सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारे अंदर बैलेंस को कैसे वर्कआउट करें, आइए लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ मेडिटेशन। क्या करता है मेडिटेशन? अब ये दो चार चीजें जो स्लाइड्स बताया गया है उसमें आप देख रहे हैं एक सी सॉ काम कर रहा है, तो एक बहुत सुंदर बैलेंस हमारे वर्क एंड हमारे लाइफ में मेडिटेशन बनाए रखता है। इट एस्टैब्लिशेस अ पीस, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, जिसके कारण हमेशा हम एक ऊर्जा, एक आनंद, एक आंतरिक प्रसन्नता से हमेशा भरे हुए रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा जॉय, दे आर ऑलवेज बबलिंग विद जॉय, और लोगों को लगता है कि इसको ये कितना कैजुअल है अपने लाइफ में, इतना कैसा हमेशा प्रसन्न रहता है। बट दैट्स द मैजिक ऑफ द मेडिटेशन, इट मेक्स यू वेरी कूल, इट मेक्स यू वेरी बैलेंस्ड एंड जॉयफुल। देन इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशन, हमारे फैमिली रिलेशंस हो, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हो, हमारे प्रोफेशनल हायरार्की में हमारे सुपीरियर्स, हमारे इंफीरियर्स, इन सब के साथ में हमारे रिलेशंस हो। इसको बहुत सुंदरता से इसका ताना बाना ये बुनते रहता है। देन डील्स इफेक्टिवली विद द प्रेशर सिचुएशन, ये इसका रियल मैजिक है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ग्रोन अप हो, चाहे फैकल्टी हो या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, सारी प्रेशर सिचुएशंस को बहुत डेलिकेटली हैंडल करने का एक बहुत सुंदर सेंस हमारे अंदर ये डेवलप करता है। एंड लास्टली इट इंप्रूव्स आवर मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। अब ये इसका बॉटम, आई मीन ऐसा कि ये इसका अंडर करंट है। बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई एक जगह आंख बंद करके या नाक बंद करके या शांत बैठ करके हमारी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाएगी, हेल्थ के लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा ना। सो दैट्स द मैजिक ऑफ सहज मेडिटेशन, कि ये जिस तरीके से आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मेंटल वेलबींग को संभालता है, वैसे ही ये आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके बॉडी ऑर्गन्स से रिलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इंप्रोवाइज करता है। आइए देखते हैं कैसे करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे पहले मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी के बारे में जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस को बड़ी तरीके से समझते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल आई कोरिलेट विद द साइंस, आप सब लोगों को लगेगा कि इमेजिनरी बातें करना बहुत आसान है। तो हाउ डज मेडिटेशन रियली हेल्प विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इसका एक स्टडी के बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड। इन द ईयर 2001 एक स्टडी सहयोगा मेडिटेशन के माध्यम से किया गया कि हाउ एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर डेल्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। तो 3 पैरामीटर्स रखे गए। ये जो स्केल है जिसपे इसको आंका गया है, इसको बहुत फेमस, इसको नाम है हैमिल्टन द डिप्रेशन रेटिंग स्केल, इसको कहा जाता है। आप लोग गूगल पे भी इसको चेक कर सकते हैं, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, जिसमें हर व्यक्ति के अंदर जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है उसके लेवल को कैसे मेजर किया जाता है, उसका स्टडी इस 2001 में प्रेजेंट किए गए पेपर में किया गया था। 3 पैरामीटर्स लगाए गए थे कि एंजाइटी और डिप्रेशन को, सबसे पहला मेडिसिन, दूसरा अलग अलग थेरेपीज, और तीसरा मेडिटेशन। तो लास्ट में जो SY लिखा है दैट इज सहज योगा, और उसके पहले जो है फर्स्ट वन इज मेडिसिन, second one is therapies, and third one is सहज योगा meditation.
तो रिजल्ट्स बड़े मिराकुलसली वर्कआउट हुए कि मेडिसिन से हम सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक ही डिप्रेशन को डील कर सकते हैं या एंजाइटी को डील कर सकते हैं। थेरेपीज का यूज करें, अलग अलग थेरेपीज हो, अलग अलग कोर्सेस हो, तो टू सम लिमिटेड एक्सटेंट वी कैन improvise the results. But when we apply सहज योगा meditation for dealing with these two things, बहुत ड्रास्टिकली हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट दो स्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट राइट, इन दोनों स्फीयर्स को एट अ टाइम एक्टिवेट करने का काम मेडिटेशन में जो सारी जो वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं, जो वेव्स डेवलप होती हैं, वो बड़े आसानी से और बड़े इफेक्टिवली कर सकती है। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट एंड द स्टडी ऑफ सहज योगा मेडिटेशन ऑन द पेशेंट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप लोग कहेंगे कि ये होता कैसे है, तो मैं बड़ी सरलता से आपको समझाऊं, क्योंकि लास्ट में जब हम मेडिटेशन करेंगे तो इसी पैरामीटर पे आप लोग चेक कर पाएंगे कि सच में मेडिटेशन हुआ या नहीं। तो मेडिटेशन करता क्या है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं पेंडुलम की तरह लोग या तो पास्ट में या तो फ्यूचर के थॉट्स में घूमते रहते हैं। अब ऊपर में आप जो देख रहे हैं कि जैसे कार्डियोग्राफ चलता है, वैसे ऊपर नीचे हमारे थॉट्स की वेव चल रही है। तो ये थॉट्स की वेव ऐसा है कि कभी हम आगे का सोच रहे हैं या कभी पीछे का सोच रहे हैं। अभी आप घड़ी का 1 मिनट लगा करके यदि अपने आप को चेक करें कि आपके ब्रेन में, आपके मन में कौन से थॉट्स चल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि 1 सेकंड के लिए क्या, 1 मिली सेकंड के लिए भी हमारे थॉट रुकते नहीं है। एक रुका तो दूसरा, दूसरा रुका तो तीसरा, इस तरह से हम चलते रहते हैं। सहज योगा मेडिटेशन क्या करता है, ये बड़े स्पॉन्टेनियसली और बड़े एफर्टलेसली इस दोनों थॉट्स के बीच की गैप को वर्कआउट करता है और हमें थॉटलेस बना देता है। आज मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि अंत में जब हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अंत में आप इस थॉटलेस स्टेट ऑफ योर माइंड को आप एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाउंडर के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूं, शी इज श्री माताजी निर्मला देवी, डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने सहज योग का इन्वेंशन इन द ईयर 1970 किया। एंड फॉर हर वर्ल्ड वाइड वर्क ऑफ सहज योगा मेडिटेशन, जिसे इन्होंने एक कॉग्निटिव साइंस के स्वरूप में सहज योग को पूरे विश्व में प्रसारित किया, इसके लिए 2 बार उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और रोमानियन यूनिवर्सिटी ने श्री माताजी को डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि कॉग्निटिव साइंस की ब्रांच में इतना काम इसके पूर्व किसने नहीं किया था। जो पेट्रोवस्काया एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, जिसमें सिर्फ दुनिया में 12 लोगों को इसके पूर्व इसकी सदस्यता दी गई है। श्री माताजी वाज अवॉर्डेड विद द मेंबरशिप ऑफ दैट पेट्रोवस्काया एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। मानव इतिहास में इससे पहले ये सदस्यता सिर्फ आइंस्टीन साहब को दी गई थी, उसके बाद में श्री माताजी को इस सदस्यता से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। देन श्री माताजी ने एक सिद्धांत पूरे विश्व के सामने रखा कि व्हाई इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सहज योगा शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज जब एकेडमिशियन और स्टूडेंट्स टेंशन फ्री होकर के, फुल ऑफ एनर्जी से एंथुसियास्टिक होकर के मेडिटेशन करके यदि अपने आप को एकेडमिक वर्क के लिए तैयार करते हैं, तो दे कैन प्रोड्यूस वंडर्स। और इसका एक पूरा प्रूफ श्री माताजी ने पूरे विश्व के सामने रखा। रोम में एक स्कूल है, धर्मशाला में एक स्कूल है, जयपुर में एक स्कूल है, जिस स्कूल के माध्यम से श्री माताजी ने ये प्रूफ करके दिखाया कि सहज योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स वर्कआउट करके आते हैं। एज अ लॉयर आई कैन शेयर यू कि काफी क्रिटिकल ब्रीफ्स को डील करने में और रूथलेस जजेस को डील करने में आपका मेडिटेशन आपके बहुत काम में आता है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी पेशेंट एंड वेरी पीसफुल व्हाइल डीलिंग विथ द टैक्टफुल सिचुएशंस। तो अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस स्टूडेंट्स में और उनकी इनर पावर में देख पड़े, जो श्री माताजी एक सिद्धांत पूरे विश्व के सामने रखा। आइए आगे देखते हैं। इस डायग्राम में जो दिखाया गया है, जो बीच वाला डायग्राम है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक चित्र आपके सामने रखा है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिंसिपली 2 पार्ट्स में बंटता है।
ऑटोनॉमस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इस चित्र में जो दिखाया गया है वो लेफ्ट, राइट और सेंट्रल, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंग इसमें बताए गए हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारा सारा हार्ट का काम देखता है, डाइजेशन का काम देखता है, ऑलमोस्ट पूरे फिजिक का काम देखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर वाला चैनल है इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे इमोशनल पर्सनालिटी को ज्यादा बिलोंग करता है। माने हमारे इमोशंस, हमारे विल पावर, हमारी पैशन, इन सारी चीज को ये लेफ्ट एनर्जी चैनल बिलोंग करता है। यदि हम स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बंदे हो जाएंगे या मेडिटेशन से हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर आएगा तो हमारा लेफ्ट चैनल डे बाय डे बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज होता है। यदि हम लोग थोड़े डिप्रेसिव हैं, अकेला अकेला फील करते हैं, ज्यादा लोगों में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो हमारा ये लेफ्ट चैनल धीरे धीरे वीक होते जाता है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारी पर्सनालिटी पे दिखने लगते हैं। जो राइट साइड का चैनल है, येलो चैनल, ये डायग्राम हमें अभी फॉरवर्ड है इसलिए हमको लेफ्ट राइट की ओर और राइट लेफ्ट की ओर दिख रहा है। जो येलो कलर में दिखाया गया है, दिस इज अवर राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, हमारा मेंटल डायनामिज्म, हमारा फिजिकल डायनामिज्म, हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन और जितने मेंटल एक्रोबैट्स हम सब करते हैं उन सबसे इसको रिलेट किया जाता है और फिजिकल एक्टिविटी से इसको रिलेट किया जाता है। बीच वाला जो चैनल है इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और फॉर्चुनेटली इसी बीच वाले चैनल के ऊपर कुछ एनर्जी सेंटर्स हमारे अंदर एस्टैब्लिश होते हैं। आइए देखते हैं एनर्जी सेंटर्स कहाँ हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये टोटल 7 एनर्जी सेंटर्स, जिसको मेडिकल साइंस में प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है। नीचे से ऊपर की ओर हम इनको यदि देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हर एक एनर्जी सेंटर जहां बीचों बीच दिखाया गया है, राइट साइड में स्क्रीन पर उसका नाम दिखाया गया है। सबसे पहला, सबसे नीचे पेल्विक प्लेक्सस, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को देखता है। दूसरा एओर्टिक प्लेक्सस, ये आपके स्प्लीन, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखता है। तीसरा सोलर प्लेक्सस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। चौथा कार्डियक प्लेक्सस आपके हार्ट का फंक्शन को संभालता है। पांचवा सर्वाइकल प्लेक्सस, ENT माने ईयर, नोज एंड थ्रोट का संभालता है। छठवा ऑप्टिक चश्मा, ये आपकी आंखों को, पार्शियली आपकी ब्रेन को संभालता है। सातवां लिम्बिक एरिया माने आपका संस्कार, जो हमारा तालु का जो भाग होता है, इट्स लुक्स आफ्टर योर एंटायर ब्रेन एंड योर न्यूरल सिस्टम। इन सातों एनर्जी सेंटर्स में मिराकुलसली वो एनर्जी भरी हुई है जो आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं और इन्हीं सारे एनर्जी सेंटर्स में वो एनर्जी बैठी है जो आपको कंप्लीट पर्सनालिटी कैसे बनाती है। आइए देखते हैं। पहला जो एनर्जी सेंटर है मूलाधार, ये आपकी मेमोरी से कनेक्टेड है। सो दोज हु हैव गुड मूलाधार with the practice of meditation, they have good memory. Second, aortic plexus. Those who have good aortic plexus, they are very creative in their life. They create wonders out of their creativity. Third one, नाभि चक्र, जिनका ये improvise होता है in meditation. These people are very, one can say patient. वो बहुत अपने टास्क को लेकर बहुत शांत, काम होकर के अपना सारा टास्क पूरा करते हैं। देन उसके इर्द गिर्द जो आपको हरा गोलाकार दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वॉइड और दिस इज बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन आवर पर्सनालिटी। ये जिन लोगों का बड़ा इफेक्टिव होता है वो लोग बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। पीपल ऑलवेज गेट इम्प्रेस्ड विद देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर वे ऑफ द थिंग्स दे एग्जीक्यूट। देन फोर्थ, कार्डियक प्लेक्सस, ये आपके रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को जैसे संभालता है, आपकी रेजिस्टेंस पावर को जैसे बढ़ाता है, वैसे ही ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम करता है। सो दैट इज व्हाई पीपल हु डू रेगुलरली योगा एंड मेडिटेशन, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेनेवर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। देन द फिफ्थ एनर्जी सेंटर, दैट इज कम्युनिकेशन। सारा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे ठीक नहीं होते तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बहुत सब्सटेंशियली एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो जाते हैं जब हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं। सिक्स्थ एनर्जी सेंटर, दैट इज आज्ञाचक्र या ऑप्टिक चश्मा, ये हमारे गुस्से को हमारे कंट्रोल में करता है, हमारी ओवर थिंकिंग को, डिप्रेसिव थिंकिंग को, निगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन सेंटर हमारे अंदर ये है, एनर्जी सेंटर। उसके ऊपर सातवां एनर्जी सेंटर, द लास्ट वन, विच इज एट द लिम्बिक एरिया, ये इन सारे 6 चक्रों को कोरिलेट, कोऑर्डिनेट
और इनका सिंथेसिस वर्कआउट करता है ताकि हम लोग एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन करके बाहर आए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट 5 T's। अब हमने आपको सारी रेसिपी बता दी, अब मौका आ गया है कि हम लोग आइए हम देखते हैं कि सच में ये रेसिपी हमारे अंदर वर्कआउट होती है या नहीं होती है। तो हमें करना क्या है, बड़ा आसान है। हम जिस तरह से चेयर में बैठे हैं उसी तरीके से आराम से बैठना है। हमारे पाँव में जो फुटवेयर्स है उसको निकाल के बस मदर अर्थ के साथ इसको हमारे पाँव को टच कर लेना है, क्योंकि नेचर के हम जितना करीब जाते हैं हमारा इनवर्ड जर्नी उतना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई जब हम लोग एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो हम जंगल घूमने जाते हैं, नेचुरल साइट्स पे जाते हैं और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं। आज इस छोटी सी मेडिटेटिव प्रैक्टिस को करते वक्त भी हम देखिए किस तरह से 5 एलिमेंट से कनेक्ट होंगे। जब पाँव जमीन पे रखेंगे तो मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे, जब ब्रीदिंग करेंगे तो एयर एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, जब किसी प्रेयर को या किसी अफर्मेशन को हम अपने अंदर लेंगे तो ईथर एलिमेंट से अपने साथ में कनेक्ट होंगे। सो इट्स एंटायरली अ नेचुरल सिस्टम व्हिच विल वर्क विद इन अस। इसके अगला स्लाइड प्लीज चलाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, एक छोटा सा ट्रिक या टेक्निक समझिए, अपने जो सटल एनर्जी सेंटर है उसको कैसे वर्कआउट करना है, उसका ट्रिक या टेक्निक इस स्लाइड में दिखाया गया है। हम सबसे पहले अपना दाहिना हाथ, द राइट हैंड, व्हिच correlates to our physical dynamism, our intellectual dynamism, तो correlate क्योंकि ये राइट हैंड से करता है तो all the things we shall do with our right hand। और लेफ्ट जो चैनल है जो इमोशंस या विल पावर को सिग्निफाई करता है, तो लेफ्ट चैनल को हम वैसे ही हमारी गोद में बनाए रखेंगे और सारी जो चीजें करेंगे वो हम हमारी राइट हैंड से या राइट साइड से करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि इस स्लाइड में जो पहली चीज दिखाई गई थी, that we shall put our right hand on our heart। तो सबसे पहले जब तक किसी चीज में हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता तो सारी चीजें मैकेनिकल हो जाती है, एंड मेडिटेशन कैन नेवर बी मैकेनिकल। सो वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखें, और ये जो एनर्जी हमारे अंदर बैठी हुई है, जो एनर्जी हमारे से कोरिलेट होने वाली है, वो एनर्जी हमारे अंदर नेचर के फॉर्म में या मदर के फॉर्म में रखी गई है। तो वी हैव अ वेरी शॉर्ट अफर्मेशन, वेरी सिंपल अफर्मेशन टू से दैट ओ मदर आई एम अ प्योर स्पिरिट। तो आइए हम प्रकृति को, नेचर को, लेट अस कॉल अपॉन दिस प्रकृति या नेचर को हम एक मदर फॉर्म में वी कैन रिक्वेस्ट। सो द फर्स्ट वेरी सिंपल अफर्मेशन वुड बी ओ मदर आई एम अ प्योर स्पिरिट। सेकेंडली, इसी हाथ को हम अपने फोरहेड पर रखने वाले हैं, फोरहेड पर रखने वाले हैं और फोरहेड को आगे की ओर थोड़ा सा झुकाएंगे। ये हम इसके लिए करेंगे कि जब हम इसको करेंगे तब हमारे थॉट्स को, हमारी मेंटल रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि हम पूर्ण रूप से मेडिटेशन में जा सके। और जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा अफर्मेशन है, योर मदर आई फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। देन द थर्ड वन, राइट हैंड को हम अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे और राइट हैंड को स्ट्रेच करके इसको हम अपने तालू भाग पर, लिम्बिक एरिया पर धीरे से रखेंगे, हल्के से दबाएंगे और धीरे 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 इसको गोल गोल हम 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस तरीके से कि हाथ की जो हथेली है, पाम, इससे तालू का जो हिस्सा है, हमारा जो लिम्बिक एरिया है, इसकी स्किन को हल्के से दबाकर 7 to 8 टाइम्स वी वुड बी एबल टू मूव इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड लास्टली इसी हाथ को हम नीचे ले आएंगे, एक 15-20 सेकंड्स के लिए शांत बैठेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे तालू भाग से क्या कुछ एनर्जी फ्लो यहाँ से बाहर आ रहा है। ये जो एनर्जी फ्लो हमारे बाहर आता है, दिस इज दैट प्योर एनर्जी फ्लो दैट वी एमिट आफ्टर वी स्टार्ट मेडिटेटिंग। एंड दैट्स व्हाई आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे इतिहास में जो योग का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दे हैव अ सर्टेन ऑरा अराउंड देम, बिकॉज आफ्टर मेडिटेशन दोज डायनेमिक वेव्स कम आउट ऑफ योर लिम्बिक एरिया। तो उसको हम एक डिवाइन कूल ब्रीज के फॉर्म में इसको फील कर सकते हैं। सारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में इसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। इसको हिंदू माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में स्पंद या वाइब्रेशंस कहा गया है। देन बाइबल में, द होली बाइबल में इसे कूल ब्रीज कहा गया है। कुरान पाक में इसे रूह कहा गया है। और अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन किया गया है।
तो आइए इस प्योर क्रिएशन को हमारे अंदर इसको एक्सपीरियंस करते हैं. द लास्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ. इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे हाथ ऊपर करके कि क्या हम वाइब्रेशंस को फील. नाउ प्लीज शो द लास्ट स्लाइड. हाँ, so let's start the meditation with the divine presence of Shri Mataji. I request the technical team, please show Shri Mataji's photograph on the screen. जब भी हम किसी नई चीज को सीखते हैं तो सिखाने वाले रिसोर्स पर्सन के प्रति हम थोड़ा सा हम्बल हो जाते हैं. So let us have humble feeling for the invention of the meditation technique. हम लोग शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेंगे. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें. अब चूंकि टेक्निक मैंने आपको समझा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और हाथ गोद में लेकर के 15 सेकंड्स तक शांत मेडिटेशन करना है. इसी चीज को हम फॉलो करेंगे. बस इस सारी चीजों को हम आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो हमारा ब्रेन रिएक्ट करते रहेगा. ब्रेन रिएक्ट करते रहेगा तो हम हमारी एनर्जी फ्लो को 6th एनर्जी सेंटर से ऊपर नहीं ले जा सकेंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पाँव के फुटवेयर्स निकाल लें, पाँव जमीन पे रख लें, दोनों हाथ गोद में रख लें. लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट अस एंजॉय द मेडिटेशन टेक्निक विद इन अस. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम लोग लंबा और गहरा श्वास अपने अंदर लें और धीरे 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 लंबा और गहरा श्वास छोड़ें. ब्रीद इन करते वक्त और ब्रीद आउट करते वक्त अपने ब्रीदिंग रिदम को ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, ताकि हमारा हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और थॉट प्रोसेस तीनों स्टेबलाइज हो जाए. दो तीन बार और लंबा और गहरा श्वास अब हमारे अंदर लेंगे. धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास पूर्ण रूप से छोड़ेंगे ताकि पेट और छाती खाली हो जाए. और अधिक 2 बार लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर. आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने स्पेक्स को निकाल कर रख सकते हैं, चश्मा निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सारी ही हमारी अंतर्दृष्टि की ओर जाएंगे. और एक बार पूरी विनम्रता से आंख खोल करके स्क्रीन पर जो शिव माता जी का फोटोग्राफ दिख रहा है, तो आदर भाव के साथ एक बार हम मन में ये स्ट्रॉन्ग विल एक्सप्रेस करेंगे कि श्री माता जी, टुडे आई वांट टू फील द प्योर वाइब्रेशंस विद इन मी. इस चीज को अपने मन में एक बार दोहरा लें. श्री माता जी, आई वांट टू फील दैट प्योर वाइब्रेटरी फ्लो विद इन मी एंड प्लीज गाइड मी फॉर मेडिटेशन. पुनश्च हम लोग आंखें बंद कर लें. आप सबसे रिक्वेस्ट है, राइट हैंड को हम अपने हार्ट पर रख लें, हृदय पर रख लें. लेट अस फील आवर हार्ट बीट. Let us concentrate where we have placed our hand on our heart. And with all our humbleness, पूरी विनम्रता के साथ एक प्रार्थना हमारे अंदर हम करेंगे. ओ डिवाइन मदर, I am a pure soul.
या हे परमेश्वरी माँ, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा को सारी अटेंशन हमारे हार्ट में, और इस अफर्मेशन को हम 8 to 10 टाइम्स बड़े रिलैक्स होकर के अपने अंदर इसको रिपीट करेंगे। हे परमेश्वरी माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हे परमेश्वरी माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आपका एनर्जी फ्लो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने ऑनेस्टली इन प्रेयर्स को अपने आप से करते हैं। 2-3 more times. O Divine Mother, I am a pure spirit. O Divine Mother, I am a pure spirit. Please keep your eyes closed, and I request all of you, please put your right hand on your forehead. दाहिने हाथ को अपने माथे पर पूरी तरीके से रखना है, जैसे स्लाइड में दिखाया गया था। हल्के से दबाना है और धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुका लेना है, और पूरी विनम्रता के साथ, with all our humbleness, we have to take this affirmation. हे परमेश्वरी माँ, हमने स्वयं के साथ सबको क्षमा कर दिया। ओ डिवाइन मदर, I forgive everybody, including myself. हल्के से हाथ का दबाव माथे पर देंगे और पूरी विनम्रता से कहेंगे, ओ डिवाइन मदर, I forgive everyone, including myself. O Divine Mother, I forgive everyone, including myself. हे परमेश्वरी माँ, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा कर दिया। Now I request, आंखें बंद ही रखें, दाहिने हाथ को अच्छे से स्ट्रेच कर लें, और दाहिने हाथ की हथेली को हमारे सर के ऊपर तालू भाग पर हल्के से रखें, धीरे से दबाएं, और 7 बार धीरे 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 क्लॉकवाइज घुमाना है, और 7 बार ये अफर्मेशन मन के मन विदाउट काउंटिंग बड़ी हम्बलनेस के साथ इसको रिपीट करना है। ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी माय सेल्फ रियलाइजेशन। हे परमेश्वरी माँ, हमें हमारा साक्षात्कार दे दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज ब्लेस मी with my realization. O Divine Mother, please bless me with my self-realization. O Divine Mother, please bless me with my self-realization. O Divine Mother, please bless me with self-realization. हे परमेश्वरी माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। धीरे से हाथ को नीचे गोद में ले लीजिए, गर्दन सीधी कर लें, और
20-30 सेकंड्स के लिए शांत बैठे रहें, कुछ नहीं करना है। और जहां हाथ रखा था लास्टली, वहां अपने अटेंशन को बड़ी सहजता से स्टेबलाइज करने का प्रयास करना है। Now I request all of you, आंखों को बंद ही रखें और दाहिने हाथ की हथेली को फिर से उंगलियों को हल्के से स्ट्रेच करके अपने सर के ऊपर तालू भाग पे जहां लास्टली हाथ रखा था वहां एक बार रखें और फिर 1 इंच ऊपर उठा करके देखिए, ओनली 1 इंच, और चेक करें कि फैन की हवा या बाकी चलती आर्टिफिशियल हवा से अलग हमारे तालू भाग से क्या कुछ हल्का सा ठंडा या हलका सा लुकवर्म, ज्याला मराठीत आपण कोमट म्हणतो, असा हल्का गर्म या हल्का ठंडा एनर्जी फ्लो हमें हमारे लिम्बिक एरिया से फील हो रहा है क्या? थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं बाएं, इसको चेक करिए। नहीं आ रहा है या गर्म आ रहा है तो एक छोटा सा एडिशन हम इसमें करेंगे। दाहिने हाथ को फिर से एक बार अपने फोरहेड पर या आज्ञा चक्र पर रखें, हल्के से दबाएं। कभी कभी हमारा आज्ञा चक्र ठीक से वर्कआउट नहीं होता तो ये फील हमें कम आता है। तो दाहिने हाथ को हमारे माथे पर रखें, पूरी हाथ को स्प्रेड करके माथे पर हल्के से प्रेस करें और पूरी विनम्रता से कहें, ओ डिवाइन मदर, आई फॉरगिव एवरीबडी एज वेल एज माई सेल्फ। ओ डिवाइन मदर, I forgive everybody and myself. अब दाहिने हाथ को ऊपर ले आए, सहस्त्रार पे लिम्बिक एरिया में हल्के से दबाएं। हाथ की उंगलियां अच्छी तरीके से स्प्रेड हुई। धीरे धीरे इसको 3 बार यहां और हम घुमाएंगे। एंड वी विल रिक्वेस्ट, ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी द फील ऑफ माई डिवाइन वाइब्रेशंस। Oh Divine Mother, please give me the feel of my divine vibrations. Shri Mataji, please give me the feel of my divine energy. अब हाथ को 1 इंच ऊपर उठा करके देखें कि अब क्या कुछ हल्का सा ठंडा या हल्का सा गर्म हम हाथ में फील कर पा रहे हैं। राइट में फील हो रहा है तो राइट को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए गोद में, लेफ्ट से करके देखिए कि लेफ्ट हैंड को सर के ऊपर रखा और 1 इंच ऊपर उठा करके देखा। दोनों हाथ को नीचे ले लीजिए। 10 सेकेंड्स इस पीसफुलनेस को हम एक बार फील करेंगे। और मन ही मन हमारे अंदर ये जो एनर्जी है, जिसे हम जिस भी स्वरूप में मानते हैं, भगवान कहें, अल्लाह कहें, भगवान गौतम बुद्ध कहें, गुरु नानक देव कहें, जिस भी स्वरूप में मानते हैं, बहुत हम उनके आभार व्यक्त करें।
स्वयं के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रकृति के भी आभार व्यक्त करें और धीरे धीरे सामने की स्क्रीन को देखते हुए हम आंख खोल सकते हैं। केवल छोटे छोटे 3 प्रश्न मैं पूछता हूं, आप हाथ खड़ा करके उसका जवाब दे सकते हैं। जिन लोगों को सर के ऊपर हल्का सा ठंडा फील ऑनेस्टली हुआ है वो लोग हाथ को ऊपर कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं कि यस हमें ठंडा फील हुआ। यस, ठीक है। जिन लोगों को हल्का सा गर्म महसूस हुआ, थोड़ा सा लुकवर्म या गर्म महसूस हुआ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसको करने के बाद में कुछ सेकंड्स के लिए आप लोगों को ये लगा हो कि हमारे मन में अब कोई विचार नहीं है, अब पूरे तरीके से हम लोग काम एंड बैलेंस हो गए हैं, या जैसे गहरी नींद लेकर के हम उठते हैं तो जितना रिलैक्स फील करते हैं वैसा जिन लोगों को लगा है कृपया हाथ ऊपर करिए। ठीक है, तो ये अलग अलग फील हमारा इसके लिए आता है क्योंकि वी आर born and brought up different, we have different habits, but the moral of the story is आपका जो सिस्टम है वो इग्नाइट हो गया है। इसका ये प्रूफ है कि यू हैव फेल्ट दैट एनर्जी विद इन। जैसे जैसे अलग अलग फॉलोअप कोर्सेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम इसके मायने क्या होते हैं, इसको रेगुलर कैसे फील करना है, ये गर्म क्यों आता है, किस लेवल तक गर्म आता है और कब ये ठंडा आना शुरू होगा और उसके कैसे कैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके पर्सनालिटी में दिखने लगेंगे, इसके बारे में हम कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब आपको बताएंगे। आप सब लोग वेटरनरी साइंस वाले या डेयरी साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब ये एनर्जी फ्लो हमारे अंदर से बहता है तो प्रकृति से हमारा बहुत गहरा नाता बन जाता है। इवन द फार्मर्स हु आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग सहयोगा मेडिटेशन, दे वॉक थ्रू देयर फील्ड एंड दे गिव दिस फ्लोइंग एनर्जी टू देयर क्रॉप्स। दे हैव अ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट। जिस पैडी क्रॉप को लेकर के हमने कुछ रिसर्च किए हैं जो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी किया है। इवन द एनिमल्स वी हैव उन त्या पशूंच्या पाठीवरनं अंगावरनं जर का आपण हात फिरवला तर या व्हायब्रेशन्सचा त्यांना फार चांगला परिणाम दिसून येतो बिकॉज दिस इज नॅचरल एनर्जी। लास्टली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वन। एक छोटा सा QR कोड आपको इसमें दिखेगा। हाँ, इसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हॉल छोड़ने से पहले आप इस QR कोड को जरूर अपने गूगल स्कैनर से स्कैन कर ले बिकॉज देयर इज अ शॉर्ट फीडबैक फॉर्म। एक फीडबैक हम आपसे लेंगे, जो फीडबैक हमारी सेंट्रलाइज टीम इसको रीगैदर करेगी एंड देन वी विल अगेन प्रोड्यूस इट टू द गवर्नमेंट कि यंग जनरेशन जब मेडिटेशन करता है तो उसको इसमें से क्या फील होता है। सो दिस फीडबैक ऑफ योर्स वुड बी इमेंस यूजफुल फॉर अस। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने इस एनर्जी को जो फील किया है इसके फॉलोअप जितने सेशंस होंगे आप सब लोग उसमें जरूर उपलब्ध रहें और इसको ऑनलाइन सारा चेक करने के लिए आप www.sehyoga.org पर इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी डिटेल्स हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ सहयोगा परिवार इंडिया, आई एम इमेंसली थैंकफुल टू ऑनरेबल VC सर, ऑनरेबल members of academic council and executive council, all honorable deans and all the honorable head of the departments, and last but not the least, all my fellow colleagues, friends and dear students of the institution. Thank you very much. Thank you one and all for remaining present for this program. Thank you so much, sir. Now we are at the position of this long program. So it is our duty to extend gratitude toward chairman, guests, and all present here and join online. So first I am thankful to chairman of today's function, Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Nitin Patil sir. I am thankful to Advocate Mahesh Dandekar sir, Coordinator Sahaj Yoga, Maharashtra State. I am thankful to Director of Research Dr. Nitin Kulkure sir, Director Extension Education Dr. S.W. Bonde sir, Dean Lower Education Dr. Nancy sir, Registrar Srimati Mona Thakur Madam, Controller Srimati Manisha Shende Madam, Associate Dean of Nagpur Veterinary College Dr. Jayant Korde sir, all the associate deans and faculty members of constituent colleges of MAPSU, all the principals of diploma schools, joined online, all academic staff and non-teaching staff of the university, and all dear students present here and joined in online. Thank you so much, one and all. Thank you. Our request is there. He is arranged here, so I request all of you to stay here.
one small request from my side and also from university side that for next 2 days, that is on tomorrow and day after tomorrow, at same time probably, if we are here again, and again, it is the request that all those people who are here, they are welcome. If they can join online, that is also good. But some people who wish to be with their families, especially the staff, that I would request. It is the request for the people who have joined online also, all the staff members who are there. So that you people are convinced so that the same knowledge can be passed on to our students. And that's the request that if they are equipped with the knowledge, the personality development and all those kind of things which are promised in NEP, so that could be fulfilled. And this particular experience, after maybe some few days of time, that could be spared with other people of the universities, other universities, because we are in that process. So it will definitely be a milestone for all of us that we can really and very truthfully, sincerely do practice this. And as a very good example, what he said, that as a scientist has first a hypothesis on the day that he says that this is true or untrue. For that, you have to have experimentation. डॉक्टर सुद्धा आपल्याला सांगतो की मी हे आज औषध देतोय तुम्हाला 10 दिवसांनी बरं वाटेल तर ते 10 दिवस तुम्हाला जाऊ द्या लागतात जेपर्यंत तुम्ही डिक्लेअर करत नाही की ही औषधी मला लागू झाली की नाही झाली तर तसाच एफर्ट्स आपल्याकडनं मला असं वाटतं व्हावा की जवळपास 2-3 महिन्यापर्यंत किंवा एकाच महिन्यापर्यंत काही लोकांना फार लवकर हा एक्सपिरियन्स येतो अँड ऑल दॅट हॅज बीन प्रॉमिस्ड की परमपूज्य माताजी या तऱ्हेच मेडिटेशन आणि या तऱ्हेचं कन्व्हिक्शन घेतात लोकांकडनं की 2-3 महिन्यानंतर तुम्हाला काय आतमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन येतं का कारण आज हे पहिल्यांदा होणं हे महत्वाचं पण त्याच्यानंतर हे सातत्य ठेवणं हे त्याच्यापेक्षा महत्वाचं आहे तर ते करून आपण 3 महिन्यानंतर पुन्हा असं बघू की काय आपल्याला खरोखर याचा फायदा होतो की नाही होत नाही होत काय त्याच्यात अडचणी आहे सो ऑल दीज पीपल पॉसिबली दांडेकर साहेब विल अरेंज इट ॲट all places because he has also sent team all over Maharashtra wherever our colleges are there. So these people and also QR code तुम्हाला जो मिळालेला आहे there are different centers all over India and all over world about it. So those people are always in eagerness that they would help you all. So with these things I expect that another 2 days of follow-up that would be well attended. You will be sincerely coming here and it is really a very pure desire of all these people who have come here to conduct this program, leaving all their important works aside and then they are with you. So very sincerely, with all gratitude, I thank all these people who are with us. And thank you very much. And let we grow together and have the divine experience all the time. Thank you.